Hey guys, hi, good evening, actually, good morning. Welcome to Unacademy. This is, I guess, airing on both the YouTube channels, that's Unacademy 9 and 10 and Unacademy Let's Crack Foundation and NTSE. So, this test जो मैंने आपसे शेयर किया था, ये टेस्ट लाइव प्रोसेसेस से था एंड इसमें कई सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्टली एनसीईआरटी स्टेटमेंट के हिडन लॉजिक एंड एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट का डेप्थ से आया था एंड आई एम रियली हैप्पी that a lot of you attempted the test if I bring in total responses लगभग 73 people took the test and guys I will once again repeat you'll often get these tests around per week one or sometimes you know it may be twice a week sometimes once in 2 weeks right and I want to point out the average score was 26 now ये टेस्ट थोड़ा सा हार्ड था not थोड़ा सा hard it was more than medium more than an average test and if you people are scoring at least 26 on average that means you're doing good you just need to keep on doing better ठीक है median score was around 28 of 50 that is also good and then there was a score range the minimum was 7 and the maximum was 44 I'm really happy with the scores but what's more important than scores are come on the solutions so what I'm going to do is I'm going to quickly discuss the solutions मैं solutions फटाफट discuss करने वाला हूँ इसके तो what you can do is आप सभी को आपके statements के एक कॉपीज मेल हुए होंगे बेटा जीमेल इज रियली रियली इंपॉर्टेंट नाउ फॉर दिस टेस्ट सो आपको सभी रिस्पॉन्सेस का एक कॉपी मेल हुआ होगा मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को फटाफट डिस्कस करूंगा उनके आंसर्स उनके लॉजिक्स विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट एंड आई वांट यू टू क्विकली क्रॉस चेक योर रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट द सॉल्यूशंस एंड अंडरस्टैंड कि आपको कहाँ पे किस तरीके से सोचना था ठीक है चलो लेट अस क्विकली बिगिन बट बिफोर आई स्टार्ट ऑफ I want to quickly talk about my channel जहाँ पे मैं regularly पढ़ाता हूँ that is Let's Crack Foundation NTC channel जो आपको NTSE, NSEJS, IJSO, IBO, NSEJS, KVPY जैसे कमाल के एग्जाम्स की तैयारी करने में मदद करता है and you can get all of that by our YouTube channel. Also, our Unacademy app is a host of new features. All you can need to access that is the code Sona05, right? Also बेटा अगर आपको मेरे YouTube लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का स्केड्यूल जानना है तो लाइव लेक्चर्स रात को होते हैं शॉर्ट वीडियोस सुबह होते हैं स्पेशल क्लासेस अगर एट 3 p.m. प्लस क्लासेस एट 4:30 इस ट्रैकर की मदद से by using the tracker that I just showed you, you can access all my lectures and if you need to reach me, Sona Singh Unacademy is the way, right? ये पुराना स्केड्यूल था नया स्केड्यूल आपको कल तक मिल जाएगा ऑल्सो रिमेंबर टर्म वन के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए वी हैव ब्रॉट सीबीएसई के लिए इमर्ज जिसमें आपको डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट सॉल्यूशंस एंड ऑल इंडिया रैंक भी मिलता है all you need to access this is Sona 05 right so guys then you can start exploring our plus and iconic products being a member of plus or iconic आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाता है फॉर योर कैटेगरी जिसमें टॉप एडुकेटर्स होते हैं डाउट क्लियरिंग होता है घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में राइट यू गेट मेंटोरशिप यू गेट गाइडेंस यू गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ये एक पुराना राइट so this was an old course that we released but there is a new course as well and that new course is सारथी right so guys सारथी क्या है सारथी क्या है बेटा हम टर्म वन के टॉपिक्स को टर्म वन से लेकर एनटीएससी लेवल तक क्विकली प्रैक्टिस कराएंगे आपकी सारी फाउंडेशन फैकल्टीज देयर ऑल यू नीड टू डू इज क्विकली click on the category select the mahina and add the code add karte instant 10% discount right so guys in order to help you with that as well we have brought a scholarship examination जो 3 अक्टूबर को 1 बजे होगा remember 3 अक्टूबर 1 o'clock which you can easily access registration free of cost by just using my code SONA05 and once again it gets you an amazing pool of scholarships right so guys
make sure that you attempt the test. It's fun. Just those sections, science and maths and leadership, all of that would be available for you. Remember, science or math syllabus आपकी screen पे. You can download the syllabus also from the Unacademy app. So guys, iconic भी कुछ उससे भी बढ़कर है, प्लस के सारे फीचर्स, प्लस यू गेट अ पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट कनेक्ट सेशंस, ऑल ऑफ दैट. तरीका वही है. ओके, या सो तरीका इज द सेम. पहले कैटेगरी, फिर महीना, फिर कोड डालते ही एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, right? And also, if you find something improper in one of your of one of our videos, you can let us know and we'll be glad to help you out. ठीक है? So are we ready for the solutions now? I think we are, right? चलो फटाफट solutions discuss करते हैं. Just give me one quick moment. Let me arrive at solutions. मैं individual scores तो नहीं discuss कर रहा बेटा. I'm not discussing individual scores. I will be just talking about questions. ठीक है? and उसके solutions. So सबसे पहला question था, for autotrophs photosynthesis fulfills what? Now आपको पता है autotrophs are organism जिनकी हम सिर्फ बोलते हैं कार्बन यूटिलाइजेशन. कार्बन का सोर्स इज इनऑर्गेनिक, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट, राइट? अब फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं. अगर आपको नहीं पता, मेरे लेक्चर्स आप देख लेना. बट ऑटोट्रॉफ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके लिए फोटोसिंथेसिस क्या फुलफिल करता है? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ओनली. CO2 कार्बन लाके देता है, सनलाइट एनर्जी लाके देती है. मिनरल रिक्वायरमेंट्स बेटा हमेशा सॉइल ही देता है. ऑलवेज इट इज द सॉइल दैट गिव्स यू. मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको थोड़ा सा सॉल्यूशंस कम दिखे. सो लेट मी रिड्यूस माई सेल्फ इन साइज. हाँ, अब ठीक है आई थिंक. सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 41% ऑफ यू चोज कार्बन, एनर्जी एंड मिनरल. नहीं, मिनरल इज ऑलवेज सॉइल. ठीक है? And this question, like half of you got it incorrect because of कि आपने सोचा एनर्जी नहीं, कार्बन भी फोटोसिंथेसिस ही दे रहा है. Now which organism uses cilia to move near and then inside itself, move the food near and then inside itself? बेटा that is paramecium. यूग्लिना के पास फ्लैजेला है, बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. एमीबा स्यूडोपोडिया यूज करता है. ये बहुत लोगों ने सही आंसर दिया. दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. Now which of the following types of movement must occur in all living organisms? एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता था. ब्रीदिंग मूवमेंट्स आपको हमारे में दिखते हैं. एमीबा थोड़ी ना ब्रीथ करता है, बैक्टीरिया थोड़ी ना ब्रीथ करता है, वो तो बस सरफेस से अब्सॉर्ब कर लेता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ ब्रीदिंग मूवमेंट. बीइंग एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बेटा वंस अगेन, लोकोमोशन इज नॉट फाउंड इन ऑल एनिमल्स. आपने पढ़ा है 9th ग्रेड में, पॉरीफेरा. सारे पॉरीफेरस मूव नहीं करते, सेडेंटरी होते, जमीन से चिपके होते हैं. बहुत सारे बैक्टीरिया आपके सरफेस पे चिपके होते हैं. मूवमेंट बिकॉज ऑफ ग्रोथ नॉट नेसेसरी, राइट? बट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स AKA ऑल्सो नोन एज मेटाबॉलिज्म. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म. केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी एंड दिस इज अ चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए. वायरसेस आउटसाइड दी होस्ट मेटाबोलाइज नहीं करते, इसीलिए हम उनको लिविंग कैटेगरी में नहीं रखते कि भैया वायरस बाहर जाओ, यू आर नॉट लिविंग, ग्रे एरिया में रखते हैं. ठीक है? सो आई एम हैप्पी 76% ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स. नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि आपको रो के अगेंस्ट करेक्ट चूज करना था. तो रो 1 में था कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन सबसे ज्यादा कब होगा? मेजर एक्सचेंज ड्यूरिंग द नाइट. क्यों भैया? सुबह के समय फोटोसिंथेसिस हो रहा है, राइट? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है रेस्पिरेशन की वजह से, वो कार्बन डाइऑक्साइड सुबह की समय फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल कर लेता है. रात के समय फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर एक्सचेंज रात में हो रहा है. रो 2 था ऑक्सीजन एलिमिनेशन. तो सुबह के समय आपका फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन एलिमिनेशन सुबह के समय ज्यादा होगा. अब देखो, अब आप बोलोगे सर यहां भी तो सेम लॉजिक होगा, रात और सुबह में रेस्पिरेशन होता है. बट बेटा मैं चाहता हूं कि आप याद करो, प्लांट टिश्यूज आर मैक्सिमली डेड, राइट? तो इसीलिए थोड़ा सा इनइक्वालिटी तो होता ही है, राइट? तो इसीलिए मेजर एक्सचेंज इज हैपनिंग ड्यूरिंग द
day. Let's go to the next question. Enzymes are more than one can be correct लिखा होता है, reactants never. Enzymes are biocatalyst और catalyst का definition ही होता है, chemistry में आप पढ़ते हो. These speed up or speed down the rate of reaction without being consumed in the reaction. They are not reactants. They are biocatalysts, true. Mostly made up of proteins, that is also correct. कभी काल RNA can also function as enzymes, उनको कहते हैं ribozymes. Are also found in bacteria, totally correct. तो बेटा इसमें आपको सही रिस्पॉन्स तभी मिलता जब आपने तीनों चूज किया होता. देखो आप बोलोगे सर ये तो अनफेयर है, पार्शियल मार्किंग आपने नहीं की. बेटा क्योंकि अभी पार्शियल मार्किंग कहीं नहीं होता, एनटीएससी में भी नहीं होता पार्शियल मार्किंग. 1 2 3 4 आता है और ABCD में क्या होता है, कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है, राइट. हालांकि एनटीएससी का प्रपोजल है कि हम पार्शियल मार्किंग हमसे करेंगे, प्रपोजल है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है बेटा. तो इसीलिए अगर आपने तीनों नहीं चूज किया होगा तो आपको 0 नंबर मिलेंगे इसमें. ओके, मैच द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शंस. रो 1 था न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन ब्रिंग्स द सोर्स ऑफ एनर्जी बाहर से अंदर, बस इतना ही, राइट. टू ड्राइव द ब्रेकडाउन प्रोसेसेस फॉर सेल्यूलर नीड्स, नो, दैट इज नॉट द जॉब ऑफ मेटाबॉलिज्म. ब्रेकडाउन प्रोसेसेस यानी कि कैटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए, वो आता है रेस्पिरेशन से. Carrying food and organism oxygen from one place to another, that is transportation. Removal of waste is excretion. I am very happy most of you answered this correctly. रेस्पिरेशन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है सेल्यूलर नीड्स के लिए, बिल्कुल सही. ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन. आपका ब्लड जो है, डाइजेशन कहाँ हुआ, आपके इंटेस्टाइन में हुआ, इंटेस्टाइन ने फूड अब्सॉर्ब किया और ब्लड उसको पूरी बॉडी में कैरी कर रहा है. गैस कहाँ ब्रीथ करते हो, लंग्स में ब्रीथ करते हो. लंग्स से ब्लड ने अब्सॉर्ब किया और उसके बाद पूरी बॉडी में उसको मूव कर रहे हैं. आपको अभी समझ चुके हो कि सर हाँ मुझे पता चल गया सर, लास्ट कैटेगरी तो रिमूवल ऑफ वेस्ट ही होगा, बिल्कुल सही, दैट इज एक्सक्रीशन. आप देख रहे हो ना कि बेटा कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन मीडियम है, कुछ क्वेश्चन हार्ड है. हमेशा कोई भी एग्जाम में ऐसा ही होता है, 4 + 3 + 3 30% क्वेश्चन ईजी होते हैं, 40% मीडियम होते हैं, 30% हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट यू आर टॉकिंग फॉर IIT JEE तब. नाउ रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, मोर देन वन कैन बी करेक्ट. अब रेस्पिरेशन में कई सारे स्टेप्स हैं. सबसे पहला इज वेंटिलेशन, गेटिंग द ऑक्सीजन इनसाइड यू. सेकेंड इज एक्सचेंज विद द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम. अगर आप एक एमीबा हो तो आपने सरफेस से लिया और यही ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया और इस्तेमाल हो गया, अच्छी बात है. बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, राइट. आप क्या करते हो, ब्रीथ कर रहे हो लंग्स में, बट फिर जो है ब्लड उसको हर एक सेल के पास पहुंचा रहा है और हर एक सेल एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, राइट. दैट इज कॉल्ड cellular respiration, right. So we have several steps of respiration which includes acquiring gas, movement that bring the oxygen to the cells and use it for cellular needs. ठीक है. Cuscuta is a plant. It however is also, Cuscuta is not a photosynthetic parasite. Photosynthetic parasitic plants होते हैं, mistletoe I think is one of them. मतलब वो फोटोसिंथेसिस करता है बट फिर भी पैरासाइट है, दूसरे प्लांट से भी आपका न्यूट्रिशन लेता है. इट्स अ नॉन फोटोसिंथेटिक पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस नहीं करता फिर भी प्लांट है. Which of the following characteristics of viruses is found when they are inside living host? So genetic material, protective covering, a form of structure. Unique क्या था बेटा, right? So found only, question को ध्यान से पढ़ना is the key. Which of the following characteristics of viruses is only found only when they are inside living host? Molecular motion यानी कि आसान भाषा में बोले तो मेटाबॉलिज्म. वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल बाहर भी है, कैप्सिड जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है बाहर भी है, एक स्ट्रक्चर डीएनए का, कैप्सिड का, न्यूक्लियो मेस का वगैरह वगैरह, वो सब बाहर भी होता है. बट the actual metabolism only starts, replication only starts once they are inside the host. ठीक है. हालांकि some viruses are exceptions to this rule, but ऐसा ही होता है generally. Carbohydrate which is not used immediately is stored by plants as, अगर वो immediately use नहीं हो रहा तो प्लांट उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके या तो उसी सेल में स्टोर करता है या सुक्रोज में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट कर देता है
और कहीं और जाके वो स्टार्च में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। और ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ग्लाइकोजन is a stored product in animals, starch is the stored product in plants. For the following secretions, select all the functions that they perform. HCl क्या करता है? Secreted by stomach, बिल्कुल सही. Pancreas, not at all. HCl is capable to break down the bonds between amino acid. आई नो, अब आप बोलोगे सर ये काम तो पेप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है. बिल्कुल सही, पेप्सिन और ट्रिप्सिन करते हैं ये काम. बट HCl भी प्रोटियोलाइटिक है. सिंपल बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से इवन HCl ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन, यस, नॉट वेरी एफिशिएंटली. बहुत एफिशिएंटली ये काम वो नहीं कर सकता जितना पेप्सिन कर रहा होगा. इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पेप्सिन इज सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन को काट के हम पेप्सिन बनाते हैं एक्टिव फॉर्म में, और ये काट के बनाने वाला काम भी HCl ही करता है. ठीक है. सो इट इज सिक्रेटेड बाय स्टमक, इट डाइजेस्ट्स द प्रोटीन्स एज वेल. म्यूकस स्टमक भी सिक्रीट करता है, प्रोटेक्ट भी करता है अगेंस्ट डिग्रेडेशन. ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो हमेशा पूछा जाता है. एंड गाइस, जिसमें भी एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेज है, अगर आपने वो सारे रिस्पॉन्सेज नहीं चुने तो आपका 0 मार्क्स आएगा इसमें. तो इसको लेके दुखी मत होना. ठीक है. नाउ पेप्सिन सिक्रेटेड बाय स्टमक, डाइजेस्ट प्रोटीन, इज सिक्रेटेड इन द इनएक्टिव फॉर्म. आपको पता है पेप्सिनोजेन, जैसा अभी अभी हमने बताया. ट्रिप्सिन पेनक्रियाज सिक्रीट करता है, एंड वंस अगेन इट इज सिक्रेटेड इन द इनएक्टिव फॉर्म, बाद में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है. मोस्ट ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऐसे ही होते हैं. Carbohydrates which are not used immediately are stored by humans as, मैंने जैसे पहले बताया था, ग्लाइकोजन. ठीक है. Why do we boil the leaf in alcohol before performing the test? आपका एक टेस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए, टू डिटेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च. चाहे सनलाइट इज एसेंशियल, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल, वॉट एवर इज एसेंशियल, यू हैव अ टेस्ट, राइट, टू डिटरमाइन कि स्टार्च प्रोड्यूस होता है या नहीं होता है. उसमें आपका एक ही काम होता है भैया, अल्कोहल. हर चीज में आप अल्कोहल में पहले लीफ को बॉईल करते हो. क्यों करते हो बेटा बॉईल? सिंपल रीजन है, अल्कोहल से आपका क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाता है. क्योंकि जब आप आयोडीन डालोगे, आयोडीन तो येलो कलर का है, आप नहीं चाहते कि आपका आयोडीन डालने के बाद जो कलर आए वो क्लोरोफिल से कोई इंटरफेरेंस हो, इसीलिए यू डिसॉल्व इट इन अल्कोहल. फिर वंस अगेन ग्लूकोज का काम, ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक्स इन साइटोप्लाज्म, इट डज नॉट ब्रेक इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जाता है. पायरुवेट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया और वहां उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां से रिलीज होता है? सो बेटा दैट इज रिलीज फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, नॉट इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है. लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली. क्यों? अगर ऑक्सीजन है तो पायरुवेट क्या करेगा, सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में घुसेगा. Now hidden NCERT statements, right? Which of the following mark the chief site of photosynthesis? आपको पेलाइसेड पैरेन्काइमा चूज करना था. पेलाइसेड पैरेन्काइमा along cells just beneath the epidermis. ब्रीदिंग के समय हम क्या करते हैं? डायफ्राम ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, राइट? सो आपको एरिया वॉल्यूम बढ़ाना होता है, प्रेशर डिक्रीज करना होता है. सो डायफ्राम नीचे आया, रिब्स ऊपर आए. वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम. वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, ब्रीद इन हो गया. और ये बेटा आता है, ये आता है बोर्ड तक में आता है कि भैया ब्रीदिंग का प्रोसेस समझाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द साइट दैट चीफली रेगुलेट्स द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, स्टोमाटा. आपको स्टोमाटा दिखाना था बस पिक्चर में. बलून लाइक स्ट्रक्चर्स एट द एंड ऑफ रेस्पिरेटरी पाथ्स आर कॉल्ड. इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं हो सकता. आप देख रहे हो ना, मैं भी 3+4+3 रूल फॉलो कर रहा हूँ. एल्वियोलाई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ सीलिया दैट लाइंस द ट्रेकिया? ट्रेकिया में जो सीलिया है उसका क्या रोल है? जर्म्स को ट्रैप करना, डस्ट को ट्रैप करना एंड ड्राइव देम अपवर्ड्स. मैंने आपको समझाया था और एनसीईआरटी भी समझाती है दैट म्यूकस को ऊपर ड्राइव करना इज अ जॉब ऑफ सीलिया. और जो स्मोकर्स होते हैं, पीपल हु स्मोक अ लॉट, उनका सीलिया डैमेज हो जाता है. तो देयर इज नथिंग टू मूव द म्यूकस अपवर्ड्स, और वो खांसते रहते हैं हमेशा. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट कॉज द ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डू डैश ब्रेक. बेटा ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट 2 पैराग्राफ में उन्होंने समझाया है दैट व्हाई डू वी नीड एनर्जी.
टू मेंटेन आवर स्ट्रक्चर्स. व्हाई डू नीड वी डू, हमें मेंटेन करने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर्स टूटते हैं बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट. Generally, the sequence, the events that occur during photosynthesis. सबसे पहले absorption of sunlight. I think 93% of you answered this correctly. दूसरा, light energy को यूज करके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बनाते हैं. वाटर स्प्लिट करता है ताकि क्लोरोफिल जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो वाटर प्रोवाइड करते रहे. एंड फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और केमिकल एनर्जी को यूज करके आप कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं. Desert plants absorb carbon dioxide before absorbing light to produce chemical energy. That is absolutely correct. इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना था जो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पाते. कैसे? तो बेटा सुबह में डेजर्ट प्लांट अपना स्टोमाटा नहीं खोल सकते. सुबह में अगर स्टोमाटा खोला तो सारा पानी चला जाएगा. दे ओपन द स्टोमाटा इन द नाइट, दे एब्जॉर्ब द CO2, कन्वर्टेड इनटू मैलेट. और यही मैलेट जो होता है आपको कहाँ चला जाता है बेटा? सुबह में मैलेट को से CO2 निकालते हो और CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कर लेते हो. इस प्रोसेस को स्मॉल में एनसीईआरटी ने समझाया था. Which of the following ensure that all cells remain in contact with the air? That is surface area. Which of the following is a uniform source of energy that can be used for molecular movements? हमेशा ATP. बट बेटा आई एम स्लाइटली वरीड क्योंकि कुछ लोगों ने ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को चूज किया. बेटा ग्लाइकोजन इज अ स्टोर हाउस और जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज इज अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी. कोई भी कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज भी एनर्जी का सोर्स हो सकता है बट यूनिफॉर्म. और मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की बात हो रही है बेटा. मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स यानी कि मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज यूज नहीं करता. मेटाबॉलिज्म के लिए एटीपी चाहिए. एटीपी बनाने के लिए हम ग्लूकोज यूज करते हैं. इस सीक्वेंस को समझना इंपॉर्टेंट था. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट नीड स्पेसिफिक ऑर्गन्स टू एक्सचेंज द गैसेस. नो. व्हाई? बिकॉज दे आर एक्सचेंजिंग इट फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस. Most accurate statement. Peristaltic movement occur due to muscular contraction throughout the alimentary canal. कई लोग सोचते हैं कि peristaltic movement सिर्फ wind pipe, food pipe में हो रहा है. No, throughout the alimentary canal, not just food pipe. और देख सकते हो आप 20% लोग इसी बात में कंफ्यूज हो गए. रेसिडुअल वॉल्यूम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? प्रिवेंट दी कोलैप्स. बिल्कुल सही, आई एग्री. बट चीफ इंपॉर्टेंस क्या है? अगर रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होता तो ऑक्सीजन आएगा, तुरंत जाएगा. अगर वहां कोई एयर है ही नहीं तो सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता. रेसिडुअल वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस ये है कि आपको काफी समय मिल जाता है एक्सचेंज कराने के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कैरीड. अब देखो कई लोगों ने सोचा होगा कि सर विद दी प्लाज्मा. बेटा नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लाज्मा में ही जाए. इनफैक्ट फ्यू परसेंट, 7 to 7% आई थिंक जो है हीमोग्लोबिन के साथ भी अटैच होके जाता है. इट इज अ फैक्ट. ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, बिल्कुल सही बात है, बट हीमोग्लोबिन भी कैरी करता है. एंड नॉट एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज कार्बन मोनोऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन. कार्बामीना हीमोग्लोबिन. ठीक है, आप कार्बामीना भूल जाओ, कोई बात नहीं, बट आपको याद रखना पड़ेगा समटाइम्स विथ हीमोग्लोबिन एंड समटाइम्स डिसॉल्व प्लाज्मा के साथ. ऑक्सीजन का काम क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. इनडायरेक्टली यस. लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, यस. कंबशन, यस. स्टार्च डाइजेशन में उसका कोई काम नहीं है. ब्रेकिंग डाउन फूड में एंजाइम्स का काम होता है, उसका काम नहीं होता. कई लोग इस दो चीज को कंफ्यूज करते हैं. अब आप जानते हो प्लांट्स ग्रीन इन कलर है. क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करना चाहते हो. आप कौन सा लाइट का इस्तेमाल करोगे? ना आपको पता है आपके पत्ते ग्रीन है. ग्रीन मतलब वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. फिजिक्स तो यही होता है. आपको कोई चीज किसी कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि वो उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है. राइट? यानी कि बाकी चीजें एब्जॉर्ब हो रही है बेटा. राइट? तो ब्लू और रेड, तो ब्लू और रेड को मिक्स कर दो, पर्पल लाइट्स. सो एक्चुअली में जो वर्टिकल फार्मिंग होता है, जहां बिल्डिंग्स के अंदर में प्लांट्स ग्रो करते हैं, वी यूज पर्पल लाइट्स. ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं. क्यों? फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी मैक्सिमम होती है. कई लोगों को लगता है कि नहीं, व्हाइट लाइट होगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा. नॉट ट्रू. Land insects are smaller, but humans are bigger and more complex as well. Which of the following explains the statement in the best possible way? बॉडी साइज बढ़ने से एनर्जी की नीड बढ़ेगी. हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी. विथ इंक्रीज इन बॉडी साइज द सरफेस एरिया कंपैरेटिव टू द बॉडी रिड्यूसेस. डेफिनेटली ट्रू. आप ये 9th क्लास में भी पढ़ते हो दैट सेल्स विच आर स्मॉलर आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव. व्हाई? बिकॉज दे हैव मोर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है.
राइट। और इंसेक्ट के पास एक्सचेंज कराने के लिए सरफेस एरिया कम है, आपके पास लंग्स है। सो अगर आपने ये तीनों स्टेटमेंट चूज किया देन यू वुड बी एबल टू जस्टिफाई। सो विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी ट्रू अबाउट एनिमल इवोल्यूशन ऑन लैंड कंपेयर टू वाटर? आप पढ़ते हो कि एनिमल्स के पास एयर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स दे हैव अ लोअर ब्रीदिंग रेट। क्यों? एयर में 30 टाइम्स मोर ऑक्सीजन होता है। मोर एनर्जी कंजम्पशन फॉर सपोर्टिंग देयर वेट। ट्रू। क्यों? ग्रेविटी है भाई पानी में, द लिविंग इज सपोर्टेड बाय पानी का बायोवेंट फोर्स। प्रोडक्शन ऑफ डेड लेयर ऑफ स्किन, वंस अगेन ट्रू। क्यों? अगर डेड लेयर ऑफ स्किन नहीं होगा तो पानी विल इवेपोरेट, है ना, पानी इतना इवेपोरेट हो जाएगा हम सूख जाएंगे बेचारे। द सर्फेस फॉर एक्सचेंज ऑफ लंग्स इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी, व्हाई? प्रोटेक्शन इंप्रूव होती है बेटा। अगर मान लो आपके गिल्स बाहर होते तो क्या होता, कोई भी जानवर उसको काट के चला जाता। और surface has to be thin, NCERT explains this, surface has to be thin. Specialization would be ineffective without transportation, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आपने पेट को स्पेशलाइज किया है डाइजेस्ट करने के लिए, इसका मतलब वहां से आप गैसेस एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, राइट। तो आपको पेट से बाकी जगहों पे पहुंचाने के लिए खाना, यू नीड अ ब्लड। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपको चूज करने थे। तो पेट से खाना मेरे हाथ में डिफ्यूजन से अगर जाएगा तो इट वुड बी अ स्लो प्रोसेस। इसीलिए आपको एक ऑर्गन चाहिए जो किसी, एक मीडियम चाहिए जो किसी भी ऑर्गन का स्पेसिफिक आउटपुट को किसी भी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाए। जैसे खाने को आपके पेट से लेके हाथ तक, ऑक्सीजन को आपके लंग्स से लेके आपके हाथ तक। लार्जर एनिमल्स डेवलप्ड हीमोग्लोबिन एज, क्यों हीमोग्लोबिन का डेवलपमेंट हुआ? क्योंकि बेटा डिफ्यूजन अलोन काफी नहीं होता, राइट। डिफ्यूजन अलोन काफी नहीं होता क्योंकि डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, वी नीड समथिंग दैट कैन कैरी ऑक्सीजन मोर स्पेसिफिकली। सो आई एम रियली हैप्पी दैट वी हैव 73 रिस्पॉन्सेज, राइट। एंड एवरेज अगर आप देखो तो अ ह्यूज परसेंटेज टुक अराउंड 15 से 25 मिनट, एंड दिस वाज द अप्रोप्रिएट टाइम दैट वाज नीडेड। नाउ जाहिर सी बात है बहुत लोगों ने रिवाइज करना अच्छा समझा, बहुत कम लोगों ने रिवाइज किया। दिस परसेंटेज आई वांट कि आप रिवाइज करो, उसके बाद टेस्ट अटेंड करो। अगर आप लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड नहीं करते तो प्लीज डू दैट। ओनली 15%, नॉट अ गुड नंबर बेटा, यू नीड टू अटेंड द लेक्चर्स मोर रेगुलरली। नाउ शेयरिंग, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर द टेस्ट लिंक्स, राइट। वैसे तो ये टेस्ट का लिंक अब मैं बंद करने वाला था, बट अभी भी अगर आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है, please do share. Around 42% said that you will share in future. तो आप शेयर करो। Let's study like real friends. 39% said that they find questions are based on NCERT, but बेटा actually में इस टेस्ट के 70% questions are based on NCERT. NCERT explainer sessions 80% of you wanted, that is why this session is there, and 75% of you find these session as helpful, and I'm really happy to hear that. So guys, if you want more of these tests, इस वीडियो के नीचे कमेंट तो जरूर करना, एंड आई विल इंश्योर दैट ऐसा जरूर होगा, ठीक है गाइस। सो make sure you download the app and follow my profile, that is Sona Singh's profile, so that you can get the special classes ka notifications. Better special classes has more features, real-time interactions, polls, quizzes, leaderboards, all of that. So special classes are totally free of cost and gets you a lot of features. So remember, Sona05 is your access to my special classes for free, and Sona05 is your 10% code. So download the app if you haven't already done that. Share this with your friends. You can connect with me on Sona Singh Unacademy and Unacademy NTSE Foundation. Right? Make sure that you like and share these videos with your friends. Subscribe karna mat bhulna, and don't forget to click on the bell icon, because that is how you get the notifications for all of them. Okay? Thank you so much, guys. I'll be seeing you soon. Tab tak ke liye, take care. Bye bye.